Okay. Student, last I told you about the types of teeth. The four types of teeth are incisor, canine, premolar, and molar, and their tooth formula is 2 1 2 3 in upper jaw, 2 1 2 3 also in lower jaw. The number of the teeth in our mouth, that is the 4 2 4 6. It is 4 2 4 and 6, means 18 teeth in upper jaw and 18 in lower jaw. It is a teeth formula. Incisor, canine, premolar and molar. Incisor, canine, premolar and molar. Here, these teeth are actually fitted in a socket, or we say that the arrangements of teeth in our mouth, that is called the dentition. Dentition means these four types of teeth are arranged in a socket, and their arrangements of teeth, dentition is arrangement of teeth. Arrangements of teeth is generally called as the dentitions. So the in human, the dentitions is, the arrangements of teeth is heterodont. In human, which type of teeth are present? Heterodont. Heterodont, it means the different kinds of teeth, and I told you that the four types of teeth, that is the incisor, canine, premolar and molar. So what is the mean of the heterodont? Heterodont is the arrangements of the different kinds of teeth, or four types of teeth are actually present, which help in cutting, tearing, chew and grind the food. So we studied about that the four type of teeth are present in our mouth, but the arrangements of teeth in a socket, that is called dentitions. And which type of dentition present in human? We say that heterodont type of dentitions is present, and heterodont, it means the different kinds of teeth are present. These are the incisor, canine, premolar and molar. Okay. The another type of dentition, that is the thecodont. Thecodont, it means the teeth are actually fitted in socket or embedded in socket. Heterodont means four types of teeth: incisor, canine, premolar and molar. Thecodont, it means the teeth are actually embedded or fitted in socket of jaw bones. jaw bone जो हमारे अपर और लोअर जा के जो बोन्स है उनके अंदर ही एम्बेडेड होते हैं, यानी कुछ फिक्स सॉकेट होते हैं, है ना, जिसके अंदर हमारे टीथ जो है वो अरेंज्ड है. तो सेकंड टाइप का जो ह्यूमन डेंटिशन है, जिसको हम बोलेंगे थीकोडोंट. एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द डाइफियोडोंट. The three type of dentition present in humans: heterodont, thecodont and diaphyodont. Diaphyodont means di, it means two. Two means our teeth are actually replaced two times, or teeth formed twice in life. Formation of teeth twice in life. Now what is the mean of formation of teeth twice in life? It means we know very well, जैसे ही बर्थ होता है बेबीज का, तो आफ्टर सच मंथ जो टीथ है उनका राइजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो टीथ हैं
उसको जनरली हम बोलते हैं मिल्क टीथ। और जो मिल्क टीथ होते हैं वो जनरली टेम्परेरी टीथ्स, ऐसा हम बोलते हैं। मिल्क टीथ आर जनरली कॉल्ड एज टेम्परेरी टीथ। क्योंकि टेम्परेरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो टीथ है जो एक बार गिरेंगे और उसकी जगह नए टीथ आएंगे, है ना। टेम्परेरी टीथ रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ। तो फॉर्मेशन जो है वो लाइफ में 2 टाइम होता है। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं जिनको मिल्क टीथ कहते हैं, जो गिरेंगे और उसकी जगह नेक्स्ट जो आएंगे उसको हम बोलेंगे परमानेंट टीथ। और धीरे धीरे उन परमानेंट टीथ में भी डिफरेंट टाइप्स के टीथ का अरेंजमेंट्स होता जाएगा जो अलग अलग एज में अलग अलग होते हैं। उसमें से कुछ जो टीथ होते हैं जिनको हम विजडम टीथ ऐसा बोलते हैं। विजडम टीथ देखिए, टेम्परेरी टीथ, परमानेंट टीथ एंड विजडम टीथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब विजडम टीथ आएंगे तभी आपको अक्ल आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। इसका मतलब यही हुआ, है ना। चलिए, तो हम बात करें यहाँ पर डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट एक्चुअल में डेंटिशन से ह्यूमन के अंदर टीथ का एक अरेंजमेंट्स का एक टाइप है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि डाइफियोडोंट यानी कि ह्यूमंस के लाइफ में जो टीथ है उसका 2 टाइम फॉर्मेशन होता है। तो 2 टाइम फॉर्मेशन किसका होता है? तो टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो बर्थ के बाद में स्टार्ट होता है। या जनरली हम ऐसा कह सकते हैं कि जब चाइल्ड 6 से 7 मंथ का है तब उसमें टेम्परेरी टीथ का राइजिंग स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये फॉल डाउन होते हैं, है ना। जो टेम्परेरी टीथ मैक्सिमम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 20 हो सकते हैं, 20 इन नंबर। देन जब ये रिप्लेस होंगे तो उसकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं। और परमानेंट टीथ जो है वो ये 6 to 7 मंथ है, और ये 6 to 7 ईयर की जो एज है उसमें जनरली उनके फॉलिंग और वापस उनका राइजिंग ये सब स्टार्ट हो जाता है। और ये भी मैक्सिमम कितने होते हैं? 20 होते हैं। और धीरे धीरे फिर उसका नंबर जितने मतलब गिरेंगे उतने आएंगे 20, और फिर धीरे धीरे उसका जो नंबर है वो परमानेंट टीथ का वो हो जाता है 32। तो उन 32 टीथ में कुछ ऐसे टीथ होते हैं, है ना, जिसको हम जनरली मोलर्स ऐसा हम बोलते हैं। और ये जो मोलर जो टीथ हैं जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल में विजडम टीथ, जो अपीयर होते हैं एट द एज ऑफ 18 ईयर की एज में इनका निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कि किस तरह से ह्यूमन के अंदर फूड का डाइजेशन प्रोसेस चलता है, और हम उसमें ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं कि ऑर्गन किस तरह से हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट उसमें स्टेप पढ़ रहे हैं हम इंजेक्शंस के। जैसे हमने फूड को माउथ के अंदर लिया तो माउथ के अंदर टंग और टीथ जो है वो अपना एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं, जिसमें जो टंग है वो टेस्ट प्रोवाइड करती है और मिक्सिंग करती है फूड को। एक फूड जो है उसको वाटरी जो फ्लूइड है उसके साथ में मिक्स करते, जो मैंने कहा वाटरी फ्लूइड क्या है मैं बताऊंगी आपको। और 4 टाइप्स के डिफरेंट टीथ होते हैं, बक्कल कैविटी ऐसा बोलते हैं हम, अरेंजमेंट्स ऑफ टीथ। तो जो अरेंजमेंट्स ऑफ टीथ 4 टाइप के टीथ कौन से वो तो हमने पढ़ा कि उनका फंक्शन क्या है। तो ये फूड जैसे माउथ में लेते हो तो उनकी कटिंग करते हैं, बाइटिंग करने में हेल्प करते हैं ताकि कुछ पीसेस हो जाए उसके। देन उसका माउथ के अंदर प्रोसेस चलता है जो डिफरेंट टीथ यानी कि टीयरिंग करने में कैनाइन हेल्प करते हैं। देन च्यू ग्राइंडिंग का काम है, प्री मोलर एंड मोलर ऐसा करते हैं। देखिए टीथ का अरेंजमेंट्स हमारे माउथ के अंदर है कैसा, है ना। तो जो प्रोसेस है जिसमें हमारे माउथ के अंदर अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं डेंटिशन। तो ह्यूमन के अंदर जो अरेंजमेंट्स है वो 3 टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, थिकोडोंट मीन्स द टीथ आर एक्चुअली एम्बेडेड इन जा बोन्स और इन सॉकेट, डाइफियोडोंट के टीथ जो होते हैं वो लाइफ में 2 टाइम अराइज होते हैं या उनको फॉर्मेशन होता है, जो टेम्परेरी परमानेंट टीथ। और कुछ टीथ होते हैं जो मोलर से एक्चुअल में जिनको हम बोलते हैं विजडम टीथ। तो इन टीथ का रोल एक्चुअल में हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की। चलिए देखिए, जैसे फूड माउथ में गया तो माउथ में हमने रोल पढ़ा यहाँ पर टंग का, देन टीथ। और अब हम बात करें कि जो फूड है जो च्यू हो चुका है,
कौन सा? च्यू एंड ग्राइंड फूड। च्यू एंड ग्राइंड फूड को क्या करना है? स्वेलो करना है ना, यानी माउथ से फिर वो कहाँ आ जाएगा? उसोफेगस। उसोफेगस जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। उसोफेगस इज जनरली कॉल्ड एज फूड पाइप। हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रहा है? तो हम क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन प्रोसेस यानी कि पूरा माउथ में न्यूट्रिशन मिलता रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन से पहले के स्टेप्स क्या है? तो हम क्या करेंगे? फूड है उसका इंजेक्शन हो रहा है, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, देन उसका इकेशन होगा, है ना, या फिर एक्सक्रेशन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये फूड जो है वो पास कहाँ पर हो रहा है? अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इट मीन्स द कैनाल विच इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ and into anus. A straight canal, a straight tube started from mouth and into anus. उसमें हम फर्स्ट ऑर्गेन कौन सा पढ़ा? माउथ। माउथ में आया तो क्या हुआ? अब धीरे धीरे यानी 1 बाय 1 ये हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट ऑर्गन में जाएगा और उसके साथ में क्या प्रोसेस होगा, फाइनल वे एनस तक कैसे जाता है। तो जब ये फूड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पास हो रहा है तो यहाँ पर फूड का हमें क्या करना है? जो च्यू ग्राइंड फूड है, इस फूड को हमें करना है स्वेलो। स्वेलो करेंगे तो फूड कहाँ पर जाएगा? तो उसोफेगस से पास होगा। तो इजीली वो स्वेलो नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि जिस फूड को हम ले रहे हैं, जो च्यू एंड ग्राइंड फूड है, वो एक्चुअल में कैसा है? ड्राई। और ड्राई फूड को हमें स्वेलो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस फूड को क्या होना जरूरी है? उसका वेटी होना जरूरी है, उसको वेटेड करना जरूरी है, नहीं उसको गीला करना है। तो उस फूड के अंदर है ना एक वाटरी फ्लूइड जो है वो मिक्स हो जाता है। फूड कैसा है? ड्राई। उस ड्राई फूड को क्या करना है? स्वेलो करना है। तो इस फूड के अंदर मिक्सिंग होती है माउथ के अंदर, है ना। किसकी मिक्सिंग होती है? वाटरी फ्लूइड। वो वाटरी फ्लूइड है क्या एक्चुअल में? दिस वाटरी फ्लूइड इज कॉल्ड सलाइवा। मीन्स यहाँ पर हम फर्स्ट ग्लैंड्स की बात करेंगे। फर्स्ट एसोसिएट ग्लैंड विच हेल्प इन डाइजेशंस, है ना, यानी कि फूड मॉलिक्यूल को ब्रेकिंग करने में। डाइजेशन में बताया, डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द लार्जर फूड मॉलिक्यूल ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर फूड स्वेलो होने से पहले उसके अंदर एक वाटरी फ्लूइड मिक्स हो जाता है, एंड दैट वाटरी फ्लूइड इज एक्चुअली कॉल्ड एज सलाइवा, एंड दिस सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय salivary gland. Salivary duct is present through which it secretes a biological catalyst or a biocatalyst. When food it needed to swallow a watery fluid that is called saliva, it's secreted by the salivary gland which is present in mouth or at the lower surface of the tongue. If we press our lower surface of the tongue, a watery fluid coming inside our mouth, and that watery fluid is saliva. But saliva is actually a biocatalyst. Means catalyst are such chemical or these are such enzymes which help in biological activities. Means this saliva it help to breaking down. What is the function of saliva? Saliva it contain a biocatalyst, and the name of the biocatalyst is called the amylase. What is the name of the saliva which containing a biocatalyst or enzyme? That is called amylase, or it is called the ptyalin. Amylase or ptyalin, P silent है ना। Saliva it contain a enzyme or a biocatalyst which help to breaking down the food molecule. Means
The food that we intake is in the form of starch. The saliva which contain amylase. The amylase, it breaking down the starch into sugar molecules. Starch molecule breaking down into sugar molecule. The first role in which the food start to digested. तो सबसे पहले फूड का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ? माउथ के अंदर, जहाँ पर जो फूड जो च्यू एंड ग्राइंड फूड है उसके अंदर सलाइवा की मिक्सिंग होती है, और सलाइवा का जो सिक्रेशन है वो सलाइवरी ग्लैंड्स करते हैं. सलाइवरी ग्लैंड जब वो सलाइवा सिक्रेट करती है तो सलाइवा के अंदर एक बायोकैटालिस्ट होता है जिसको हम एंजाइम्स या केमिकल ऐसा बोल सकते हैं, और उस एंजाइम या केमिकल का नेम क्या है? दैट बायोकैटालिस्ट इज कॉल्ड एमाइलेज एज वेल एज इट इज कॉल्ड एज टाइलिन. इसका फंक्शन क्या है? इट ब्रेकिंग डाउन द फूड. कौन सा फूड? विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. द स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर. So the function of amylase, it breaking down the large food molecule into smaller food molecule, the starch food molecule into glucose, starch food molecule into sugar food molecule. Now this weighty food, weighty it means कि अब उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो गया. अब हम वो फूड ड्राई नहीं रहा, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? स्वेलो कर सकते हैं. नाउ दिस स्वेलो फूड इज पास्ड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल. अब कहाँ से? माउथ से होता हुआ वो नेक्स्ट कहाँ पर आएगा? तो सीधा वो उसोफेगस यानी फूड पाइप में नहीं आकर, और हम कहेंगे कि यहाँ पर एक स्पेशल रोल और है एक ऑर्गन का जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स. माउथ जैसे ही फूड का यहाँ पर क्या हो गया? ब्रेकिंग डाउन हुआ, स्टार्च फूड मॉलिक्यूल शुगर फूड मॉलिक्यूल में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, तो अब जो फूड है वो पास होगा, है ना. और जब वो पास हो रहा है तो किससे पास हो रहा है? फेरिंग्स. फेरिंग्स इट इज अ कॉमन पाथ फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन. इन दोनों प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का एक कॉमन पाथ है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स जो है ना, वो उसोफेगस से के साथ में अटैच्ड होता है, ठीक है. और इसका फंक्शन क्या है? फेरिंग्स क्या करते हैं कि जब फूड मटेरियल है ना, जब डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो जब फूड मटेरियल उस फेरिंग से पास हो रहा है तो फेरिंग्स जो है वो एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस से मिलकर बना होता है. एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस. तो यहाँ पर ये स्पेशल रोल आपको एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस का याद रखना है. व्हेन फूड मटेरियल पासिस थ्रू द फेरिंग्स, द एपिग्लोटिस क्लोजेज द ग्लोटिस. एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को क्या कर देता है? इसको क्लोज कर देता है. क्लोजेज द ग्लोटिस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया. ट्रेकिया किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ना, जिसको हम ट्रेकिया और जिसको हम विंड पाइप ऐसा हम बोल सकते हैं. क्लियर. तो एपिग्लोटिस जब फूड पास हो रहा है तो जो फेरिंग्स है ना, फेरिंग से जब मतलब फूड पास हो रहा है तो एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को क्या कर देती है? क्लोज्ड कर देती है. क्लोज कर दे जिससे फूड जो है वो उस विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं हो पाता, उससे बचाता है, तो प्रिवेंट करने का काम करता है. तो फेरिंग्स का फंक्शन आपको समझ में आ गया? क्या करता है ये? फेरिंग्स, when food passes through the pharynx, the epiglottis, it closes the glottis and prevent the entry of food into trachea. लेकिन कई बार क्या होता है कि हम फास्ट खाना खा रहे हैं, या बात करते हुए खाते हैं, या हम लाफिंग करते हुए हम खाना खाते हैं, तो हमारा जो एयर पाइप है ना, उसमें एक स्मॉल ओपनिंग हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा वो खुल जाता है, जिससे जो फूड पार्टिकल है वो उसमें क्या करता है? एंटर कर जाता है. और एंटर करने के कारण से अचानक से हमें चॉकिंग सेंसेशन आता है. चॉकिंग सेंसेशन
choking sensation, that is actually called as the hiccup. Choking sensation is actually called the hiccup, जिसको हम हिचकी ऐसा बोलते हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? When we eat too fast or laughing, that time a little air pipe remain open, and due to the food particle enter inside the larynx, and due to we getting the choking sensation, that is actually called as hiccup. Okay? Now this food, it is passed in esophagus. So the first part is mouth, the second one is pharynx. Now we study, now food is ready to swallow and it is entered in esophagus. Look in this diagram. You clearly observe that buccal cavity, arrangements of teeth, the salivary gland at the lower surface of the tongue. If you press it, a watery fluid coming in your mouth. Pharynx, upper side of the esophagus. Esophagus, it is a food pipe that is connected with a stomach. It is a stomach. Stomach is connected with a small intestine. It is small intestine. Small intestine is connected with a large intestine. Small intestine is connected with a large intestine and it is called the anus small. Alimentary canal started from mouth and into anus. Is it clear? Clearly observe all the body parts which help in digestions. Liver, gallbladder, pancreas, salivary gland, etc. also associate with this diagram. So now we say that food is passed through this pipe and this pipe is called the food pipe or it is called the esophagus. तो क्या फूड जो है वो जैसे ही मतलब हम स्वेलो करेंगे तो ऑटोमेटिक एंटर कर जाएगा हमारे उसोफेगस से होता हुआ यानी फूड पाइप से होता हुआ सीधा वो स्टोमक में चला जाएगा? क्या उसोफेगस का और कोई रोल नहीं है? उसोफेगस जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब है ना, जो माउथ और स्टोमक को कनेक्ट करके रखता है. माउथ और स्टोमक को कनेक्ट करने वाली जो एक मस्कुलर ट्यूब है उस ट्यूब को हम बोलते हैं उसोफेगस. इस उसोफेगस की वॉल के अंदर एक स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं. मसल्स का फंक्शनिंग क्या है? मसल इट हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. तो जब ये फूड यहाँ पर एंटर होगा, यहाँ पर जो स्पेशल टाइप के मसल है जिसको हम बोलते हैं स्पिंसर मसल. स्पिंसर मसल का लोकेशन दो जगह है. तो फर्स्ट स्पिंसर मसल्स प्रेजेंट है उसोफेगस में जिसको हम बोलते हैं उसोफेजियल स्पिंसर मसल, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ. तो मसल्स का फंक्शन क्या? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. तो व्हेन फूड एंटर इन उसोफेगस द स्पिंसर मसल इट contract and relax and it producing a wave like movement, and that wave like movement is called as the peristalsis or it is called the peristaltic movement. A wave like movement or the movement of food along the along the food pipe or along the alimentary canal, and that movement is actually called as the peristaltic movement. So we say that when food is entered in esophagus, the wall esophagus is a muscular tube. ये किसको कनेक्ट करता है? It join the mouth and stomach. In the wall of the esophagus
A special kind of muscles are present. The name of muscle is sphincter muscle. The name of muscle is sphincter. It is present in the wall of esophagus. That's why it is called as the esophageal sphincter muscle. Now, what is the function of the sphincter muscle? That it contract and relax and push the food. Push the food in stomach. पुश द फूड इन स्टोमक. लेकिन स्टोमक में कैसे जाता है? बाय द स्पेशल काइंड ऑफ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और वी से दैट वेव लाइक मूवमेंट. वेव लाइक मूवमेंट. वेव लाइक मूवमेंट दैट इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. कहीं कहीं पर आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जगह आपको ऐसा भी न लिखा हुआ देगा, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. दोनों सेम ही है, पेरिस्टाल्टिक और पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. क्या है ये मूवमेंट? क्या है एक्चुअल में? तो उसोफेगस के अंदर जो ये मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिससे एक वेव लाइक मूवमेंट का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, और उसी वेव लाइक मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालिसिस ऐसा जनरली हम इसको बोलते हैं. और ये जो मूवमेंट है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा. ऐसा नहीं कि उसोफेगस में, उसोफेगस के अंदर हो रहा है तो उसोफेजियल स्पिंसर मसल है ना. इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो फूड है वो क्या होगा? धीरे धीरे आगे पुश होगा. तो उसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी स्पिंसर मसल्स का रोल होती है. यहाँ पर ये उसोफेगस के अंदर, इसलिए इसको बोल रहे हैं उसोफेजियल स्पिंसर मसल. तो सपोज आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द मीन ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? द मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट एनस में एंड होती है, तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड है वो वन बाय वन नेक्स्ट ऑर्गन में पास होता है, पुश होता है. तो पुश करने के लिए कुछ मसल्स है, उन मसल्स को हम स्पिंसर्स मसल ऐसा कहते हैं. तो यहाँ पर उसोफेगस से अब जब फूड का इस तरह से मूवमेंट होगा तो फूड जो है वो मूव करता हुआ वन बाय वन पुश होगा. एक बार फूड जो है वो पुश हुआ, फिर नेक्स्ट रेडी हो जाएंगे स्पिंसर मसल. वो जो पुश हुआ वो फूड है वो सीधा कहाँ पर जाएगा? स्टोमक के अंदर. तो इस तरह से उसोफेगस के अंदर जो स्पेशल ये जो मसल्स है वो फूड को क्या करेंगे? पुश करेंगे, जिससे जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा? स्टोमक के अंदर. तो नेक्स्ट हम यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं कि किस तरह फूड का अब यहाँ पर डाइजेशन किस तरह से होगा. तो या नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें हम, स्टोमक. Stomach, it is also a muscular organ, J-shaped, sac-like. Stomach, what do you mean about the stomach, or what do you know about stomach? Stomach is a muscular sac-like organ. The shape of the stomach is J shape. Clear? Main function storage का है ये. Stomach, it help in storage and digestion of food. Storage of food and digestion. यहाँ पर भी फूड का क्या हो रहा है? ब्रेकिंग डाउन हो रहा है. तो डाइजेशन के अंदर स्टोमक भी इन्वॉल्व है. तो स्टोमक का फंक्शन क्या है? स्टोर करना. जो फूड उसोफेगस ने जिस फूड को पुश किया वो फूड जो है वो यहाँ पर आ रहा है. कहाँ पर? स्टोमक के अंदर. स्टोमक है वो क्या कर रहा है? उस फूड को क्या कर रहा है? स्टोरिंग करने का काम कर रहा है, जहाँ पर डाइजेशन होगा.
तो स्टोमक की जो वॉल है वहाँ पर एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और स्टोमक की वॉल के अंदर स्पेशल टाइप की जो ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। फूड जो है उसोफेगस से होता है कहाँ पर के स्टोमक में। स्टोमक एक मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गेन है, जे शेप्ड होता है। इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। और ये रीज़न है कि जब हम फूड खाते हैं तो हमारा जो स्टोमक या फिर हम कैसे हमारा जो टमी है वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोरिंग करने का काम कर रहा है और धीरे धीरे उस फूड का डाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी लंबा टाइम लगता है उसको। अब जब फूड कम्प्लीटली जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो स्टोमक से होता है, वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वापस से हमारा जो टमी का साइज यानी स्टोमक जिसको जनरली हम बोलते हैं वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है? जब स्टोरेज होगा फूड का तो इंक्रीज होगा, जब वो डाइजेस्ट होकर नेक्स्ट ऑर्गेन के अंदर पास हो जाएगा तो वापस उसका साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करें कि जब स्टोमक जो है वो फूड का स्टोरिंग कर रहा है तो यहाँ पर स्टोमक के वॉल के अंदर एक स्पेशल टाइप के ग्लैंड हैं, उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के कि जब फूड स्टोमक में आएगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड इट इज सिक्रेटेड गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस एंड पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस और इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेगा, म्यूकस का सिक्रेशन करेगा और एक और एंजाइम का सिक्रेशन, अनदर बायोकैटालिस्ट विच इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दैट इज कॉल्ड द पेप्सिन। फर्स्ट तो हमने पढ़ा था माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है दैट इज कॉल्ड द टाइलिन और एमाइलेज जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो अब जो फूड जो पास हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ शुगर पास हो रहा है क्योंकि स्टार्च तो कन्वर्ट हो गया शुगर में। तो शुगर मोलिक्यूल से जो उसोफेगस से होते हैं स्टोमक में आए हैं। तो यहाँ पर अब फूड का धीरे धीरे यानी कि जो शुगर फूड मोलिक्यूल हैं उनका धीरे धीरे डाइजेशन होगा। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस और पेप्सिन जो हैं उनका सिक्रेशन होगा। HCl जो है उसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। जब कभी भी अगर इस HCl का परसेंटेज बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए यानी स्टोमक के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और उसी चीज़ को हम जनरली क्या बोलते हैं? एसिडिटी। द इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक दैट इज कॉल्ड द एसिडिटी। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना वो क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा हम बोलते हैं और साथ में ये म्यूकस को भी सिक्रेट करती है और एक एंजाइम पेप्सिन को सिक्रेट करती है जिसमें से जो HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम करती है। फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प टू किल द बैक्टीरिया विच इज एंटर्ड विद द फूड। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना एंड किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। म्यूकस इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टोमक। स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो किसका हो जाएगा? म्यूकस का ना। जैसे फूड जो स्टोमक में जाएगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, एक एंजाइम सिक्रेट होगा जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा है ना फूड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर वो पेप्सिन एंजाइम के एक्शन के लिए फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने का काम करता है और साथ में ये बैक्टीरिया जो फूड के साथ में एंटर कर उनको किल करने का काम करेगा। म्यूकस जो है
वो स्टोमक के इनर लिनिंग जो है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का, स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करेगा किससे? HCl, गैस्ट्रिक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, उस एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो म्यूकस जो है वो स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। पेप्सिन, पेप्सिन ये प्रोटीन, फूड में से प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगा। पेप्सिन, पेप्सिन का फंक्शन क्या है? इट डाइजेस्ट द प्रोटीन फ्रॉम द फूड, फूड से प्रोटीन को डाइजेस्ट, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसा भी हम बोलते हैं इसको। स्टोमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पेप्सिन। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छोटे, यानी कि जब एज कम होती है तो ज़्यादा फूड नहीं खाते, तो उस समय उनका जो मेन फूड है वो क्या है? मिल्क है। तो जो मिल्क फीडर होते हैं उनमें स्टोमक के वॉल में पेप्सिन एज वेल एज रेनिन का भी सिक्रीशन करती है। तो जब मिल्क फीडिंग करते तो उस समय उस मिल्क में से प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन को निकालने के लिए, ब्रेक करने के लिए रेनिन एंजाइम्स होता है जो स्टोमक के वॉल से सिक्रेट होता है। तो यहाँ पर अब जो फूड है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड हो गया और उस फूड में से प्रोटीन जो है ना, वो सिंथेसाइज हो गया। तो ऐसे फूड को, फूड जो स्टोमक के अंदर है, ऐसे फूड को जनरली हम बोलते हैं काइम, और इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ पेस्ट। काइम और पेस्ट है ना, जो क्या है, नेक्स्ट ऑर्गेन के अंदर एंटर करेगा। स्टोमक से होता हुआ अब जो फूड है ना, वो कहाँ पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो काइम को जनरली हम ऐसा ही बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन स्टोमक। What is the mean of chyme? It is a product of digestion. Product of digestion in stomach. एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट करने के बाद में रेडी होता है, और इसी को जनरली हम क्या बोल सकते हैं? काइम। Now this food is entered in next organ and that is called a small intestine. तो हम देखिए, सबसे पहले हमने माउथ पढ़ा, माउथ के बाद में फेरिंग्स, देन उसोफेगस, देन स्टोमक, जहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस से HCl, म्यूकोस और पेप्सिन जो रिलीज होते हैं। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। म्यूकोस जो है वो स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और जो पेप्सिन जो है वो यहाँ पर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। जो मिल्क फीडर होते हैं उनमें रेनिन एंजाइम जो है वो सीक्रेट होता है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो स्टोमक के अंदर ये जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं काइम। क्लियर? नाउ दिस फूड इज एंटर्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।